तो लास्ट क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक हम पहुंच गए थे। ड्यू टू रिंग हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था ऑन इट्स एक्सिस के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम एट इट्स सेंटर and value of this is kq by r, while electric field at its center is 0. Okay, on the axis of ring electric field is kq x by r square plus x square whole to the power 3 by 2, and electric field will be minimum at its center while potential is maximum. Okay, तो हम लोग अब उसी क्या हम कंटिन्यू करें। तो सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था, तो एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose this charge is q, minus q, again plus q, minus q, plus q. Infinite charge are placed at x equal to a, 2a, 3a, 4a. These are the positions up to infinite. Calculate electric potential at origin. Electric potential at origin. तो potential at origin is due to 1, 2, 3. जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबरिंग करी थी ना, वैसे ही कर लेंगे। तो ड्यू टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. बट electric potential is scalar quantity, so sum will be scalar. Due to 1 kq by separation, due to 2 k minus q by 2a, separation is from this point is 2a, and kq by 3a, again k minus q by 4a, and so on up to infinity. In this we take kq by a as common, then 1 minus half plus 1 by 3, 1 by minus 1 by 4 up to infinity, and value of this series is ln2. I already tell you about this series. 1 minus half plus 1 by 3 minus 1 by 4 and so on up to infinity will be the value of ln2. Okay. Similarly, if charge is not a point charge, but charge is a distributed charge system like ring, जैसे रिंग में हमने फाइंड आउट किया था ना के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है। तो अब हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलाम फोर्स में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि वहां पर हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, वायर सेंटर ऑफ मास प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स आते हैं उनमें तो हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली हियर पोटेंशियल इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई एक्स, दैट इज बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स while center of mass proportional to x. Again, concept of center of mass cannot be applied. Again, concept of center of mass cannot be applied. So, how we can solve the problem? To see this example, suppose this is rod of length L and its charge is Q. A point P taken at a distance r from the center of rod, then separation of this is r minus L by 2, and separation is this is r plus L by 2. So if charge capital Q is uniformly distributed on the rod, then calculate electric potential at P. Okay, then
linear charge density of this rod is Q by R. So Q by L. Take a element from this at a distance x, small element dx. तो चार्ज ऑन एलिमेंट dq बराबर लैम्डा dx, दैट इज q by l dx. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंट dv बराबर dv इक्वल्स k dq ओके बाई x, k q by l and dx by x implies total potential is integration of this. So integration k q by l dx by x and limit goes from this point to this point, that is r minus l by 2 to r plus l by 2 implies potential equal to kq by l ln x. Put upper limit then lower limit, this will become r plus l by 2 upon r minus l by 2. This is the answer. Okay. Now ये तो हमने पोटेंशियल आपको ड्यू टू पॉइंट चार्ज डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, और इसमें हमने आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकलवा दिया था, कैलकुलेट करवाया था. पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? इसका बेसिक डेफिनेशन है कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक ले जाइए, उसमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं तो वो आता है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? यदि कंजर्वेटिव फोर्स, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव है, और हम लोगों ने पहले ही स्टडी किया हुआ है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. सो potential energy of point charge in electric field, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड U इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. सपोज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E, a charge is placed at this point and amount of charge is Q naught. So suppose at this point potential is V, then potential energy is defined Q naught into V. Q naught into V. This is the potential energy of the charged particle in uniform or non-uniform electric field. तो जिस पॉइंट पे भी हम लोग स्टडी करेंगे वहां पे पोटेंशियल पता रहेगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे. एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. और वर्क डन बाय इंटरनल मीन्स यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? एक्सटर्नल एजेंट, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे कहें आप बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज दिस, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स equal to conservative force or internal force is become u initial minus. तो
तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू कंजर्वेटिव इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ओके, नाउ question is, suppose in this space electric field, uniform electric field E naught exists in positive x direction. So, uniform field, uniform means neither magnitude change nor direction change. A particle takes along the path, first it goes A to B, then B to C, then C to D. Suppose coordinate of A is A comma B comma C, B such that 2A comma minus B comma 0, C such that A comma minus B comma C, and D such that 0 comma 0 comma 0. Calculate work required. Calculate work required to move the charge particle from A to D along the path A to B, B to C, then C to D. Then see the solution. कल भी मैंने डिस्कस किया था और ये 11th का जो टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, उसमें हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स पाथ, it depends only on initial and final position. Okay, depends only on initial and final position. Here force due to electric field will be conservative in nature, so work done does not depends how or by what path particle goes from A to D. It depends only on the position A and D. So force will be electric field into charge and its direction along positive x-axis, so become I cap, and displacement is A to B, B to C, C to D. So displacement will be A to D direct. So displacement is AD, and AD can be written as OD minus OA. OD means 0I, 0J, 0K, and OA means AI, BJ, CK. So this become minus AI, minus BJ, minus CK. So work done, since force is constant, so F dot S. So this quantity, this dot product will give the value E naught Q into minus A. So work required, work done, this force is electrostatic force. So work done by electric force equal to minus E naught Q into A, and work done by external agent. External agent is the work against the electric force. If work done by electric force is this, because this force is electric force, then work done by external agent equal to minus of work done by electric force. So this value become E naught Q into A. If our question is calculate work done by
electric force, then answer will be this. But here our question is calculate work required. So work required means work done by external agent. External agent always work against the electric force. So work become, if this work is negative, then this work become positive. Suppose this work is positive, then this become negative. Okay. Now we will study about electric dipole. When two point charges of equal magnitude but opposite nature are placed some fixed separation. Fixed separation means they cannot be moved. Then such system is known as electric dipole. That is, suppose there are two charge plus q and minus q are placed some fixed separation like L or X or something. Then such arrangement is known as electric dipole, and mathematically its strength is defined as electric dipole moment. Electric dipole moment, and it is P equal to charge and separation between them, and its direction, this is vector quantity, direction of dipole taken from minus q to प्लस q, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लेते थे, प्लस टू माइनस. प्लस से क्या होता था, फील्ड लाइंस निकलती थी और माइनस पे टर्मिनेट होती थी. यहाँ पे क्या लेना, अपोजिट लेना है. इसका मतलब क्या होगा कि जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा, सपोज दिस चार्ज इज प्लस क्यू, दिस चार्ज इज माइनस क्यू, then direction of dipole is this, and it is defined by this. And net charge on dipole equal to always zero. It means whenever the total charge of the system will be zero, then it means such system form a electric dipole. अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये एक डिफरेंट केस हो गया, पर वो जो सिस्टम बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. और डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे वो अलग. यानी पहला कंडीशन तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए नेट चार्ज हमेशा सिस्टम का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. अब दूसरी बात ये देखो, आप जैसे यहाँ पे मान लो एल नहीं होता, हम इसको एक्स मान लेते, तो डाइपोल मोमेंट को क्या लिखते, क्यू इंटू एक्स. मतलब डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू एक्स का मतलब यदि हम क्यू फिक्स रखें लेकिन एक्स को चेंज करें तो डाइपोल मोमेंट किस तरह से चेंज होगा, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स. और सेंट्रो मास का कंसेप्ट क्या होता था, सेंट्रो मास का कंसेप्ट भी क्या होता है, COM बताया था आपको, प्रोपोर्शनल टू एक्स. इसका मतलब है कि जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम लोग कूलाम्स फोर्स में, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर पाए थे, उस कंसेप्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज हियर डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड सेंटर ऑफ मास इज प्रोपोर्शनल टू एक्स. तो इसमें उस तरह का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था. जैसे पूरे रॉड का मास सेंटर पे होता है तो पूरे रॉड का चार्ज हम सेंटर पे कंसंट्रेट करा के स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए, जो प्रोपोर्शनल टू एक्स के हों. तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो ये डायरेक्शन हो गया. दूसरा अब इसमें आते हैं सुपरपोजिशन.
सुपरपोजिशन का मतलब यदि एक से ज्यादा डाइपोल हो, कुछ ऐसा बन जाए, तो एक से जब ज्यादा डाइपोल बना लेगा तो फिर डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। सपोज कुछ ऐसा अरेंजमेंट बन गया कि ये डाइपोल मोमेंट P1 है, इधर P2 बना, यहाँ P3 बना, तो ये जो डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वेक्टर सम से सॉल्व करेंगे। अब वेक्टर सम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो लेक्चर्स हैं हम आपको पहले बताए कि ये क्रैश कोर्स के कंसेप्ट पर है। तो जब ये क्रैश कोर्स के कंसेप्ट पर है तो इसमें हम आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हर टॉपिक से आपको अवेयर करा सकते हैं, जिससे उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए तो आपका कुछ स्कोर इंक्रीज करे, है ना। तो उससे रिलेटेड जो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरी पार्ट में हम ज्यादा डिस्कशन ना करके हर कंसेप्ट से रिलेटेड एटलीस्ट एक एग्जाम्पल जरूर दे रहे हैं, जिससे से थोड़ा सा आप उसको रिलेट कर पाओ। ओके, तो अब हम लोग सुपरपोजिशन पर बेस्ड की रिजल्टेंट, जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया आपने, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, उसी तरह से अब हम लोग इसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टडी करें। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए सपोज देयर आर 3 चार्जेस 2q -3q and +q. 3 charges 2q -3q and q are placed at 3 vertices of an equilateral triangle. Calculate net electric dipole moment of the system. Calculate net इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो अब यहां पर आप ये देखें, पहला चीज तो डाइपोल बन रहा है नहीं बन रहा है, इसके लिए सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको बोला कि आप चार्ज ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करो। तो टोटल सिस्टम का जो चार्ज है क्या 0 है, देखें -3q + q 2q, सम करिए 0 आया, इसका मतलब ये डाइपोल सिस्टम बना रहा है। तो डाइपोल सिस्टम बना रहा है, लेकिन डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, या जो डाइपोल सिस्टम बनता है उसमें इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस फिक्स्ड सेपरेशन पर होते हैं। तो ठीक है, यदि हम इस पेयर को कंसीडर करें तो चार्ज का नेचर तो अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं। इसमें क्या है कि नेचर अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं, इसमें नेचर सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं, तो इसमें तो वैसे ही नहीं पॉसिबल है। लेकिन होल सिस्टम तो डाइपोल बना रहा है, क्योंकि टोटल कितना चार्ज आ रहा है 0। तो अब हमको अपने से इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। यहां पर जैसे अपने पास ये चार्जेस हैं, ये q -3q, ये 2q। यदि इस -3q को हम लोग रिजॉल्व करें, कैसे, ये q था, ये 2q था, और इसको हमने रिजॉल्व कर लिया -2q एंड -q, -3q हो जाएगा टोटल। तो एक डाइपोल तो ये बना 2q एंड -2q। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टुवर्ड्स ये, और दूसरा डाइपोल कौन बन रहा है, इधर। अब आप ये सोचो कि सर यहां से स्टार्ट करें, यहां से, देखो ये तो डाइपोल बना नहीं रहा है, डाइपोल एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है। तो ये सिस्टम को ऐसे देखो, -q और +q का डाइपोल इधर हुआ, तो इसका P1 कितना हो जाएगा, q इंटू, यदि इसका डाइपोल मोमेंट लिखना चाहो तो q इंटू ए। अच्छा, दूसरा डाइपोल है, देखो चार्ज, कोई एक चार्ज लेते हैं और उनके बीच का सेपरेशन, तो ये दूसरा डाइपोल क्या बना, चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, एनी वन ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ये तो डाइपोल बना नहीं रहा, ये बना रहा था तो हमने बना लिया। अब देखो 2 वेक्टर्स P1 and P2 make 60 degree, then resultant dipole moment will be P1 square P2 square 2P1 P2 cos 60. Cos 60 is half. Substitute value of P1 QA and P2 बराबर 2QA. Then P will be, take QA common.
then here 1, here 4, cos 60 is half, 2 cancel, then 2. So this will be QA root 7. So dipole moment of this system will be QA root 7. Okay. Now we will see next example, and next example is this. Question is this: suppose this is the circular ring of radius r, circular ring of radius r. Its two halves charge with equal and opposite charge, that is density of this side is plus lambda and density of this side is minus lambda. Calculate dipole moment of system. यदि हम ये कंसेप्ट नहीं जान पाते कि डाइपोल मोमेंट में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, यदि हम इस कंसेप्ट को नहीं जान पाते तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन से सॉल्व करते, जो कि एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशन बना देता और उसका सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता था। लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं तो प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो जब प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो हम इसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब सेंटर ऑफ मास का अप्लाई कर सकते हैं तो अब आप देखो क्या चार्ज 0 है, इस पर चार्ज कितना आएगा, लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ, लेंथ इज पाई आर, हाफ है ना, तो लैम्डा पाई आर, इसका माइनस लैम्डा पाई आर, नेट चार्ज 0 हो रहा है। तो इसलिए हम सॉल्यूशन में क्या करें, यदि हम इसको दो हाफ में बदल लें, जैसे ये दो हाफ हो गए, ये चार्ज था इसका प्लस और इसका माइनस, तो यदि हम इसको दो हाफ सोचें कि ये दो हाफ पार्ट है, ये अलग ये अलग, तो ये आधा रिंग हुआ। तो आधे रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पर, आधे रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पर। तो ये जैसे सेंटर ऑफ मास होता था तो ये दूरी कितनी आएगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग 2r/पाई होता है, ये तो फॉर्मूला है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग 2r/पाई पर होता है, इसका भी कितना होता है 2r/पाई पर। तो यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू होगा, यहाँ पर प्लस क्यू, मतलब इस अरेंजमेंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये माइनस क्यू रखा, ये प्लस क्यू रखा, और ये सेपरेशन कितना होगा 4r/पाई, और जो चार्ज का वैल्यू है कोई एक चार्ज निकालो तो कितना लैम्डा इंटू पाई आर, क्योंकि आधे पर है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या लिखोगे, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो सेपरेशन कितना है 4r/पाई, एंड क्यू इज लैम्डा पाई आर एंड 4r/पाई, पाई कैंसिल, सो दिस विल बी 4 lambda r square. This is the answer. Okay. Now electric field and electric potential on the axis of electric dipole. Electric field and electric potential on the axis of electric dipole. Suppose this is the electric dipole P and we want, देखो ये जैसे डाइपोल है तो हमने क्या बताया, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज अलग अलग भले ही होते हैं, सेपरेट होते हैं, पर होते फिक्स सेपरेशन पर। मतलब जैसे एक ये मार्कर है, एक इस एंड पे चार्ज जुड़ा है, एक इस पे, तो वो हमेशा जुड़ा रहेगा। वो अदरवाइज माइनस क्यू प्लस क्यू क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा तो एक दूसरे के पास आ जाना चाहिए उनको, पर वो फिक्स सेपरेशन पर होते हैं तो वो आ नहीं सकते हैं, तो किसी तरह से उनको फिक्स किया हुआ है। तो जब वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से, तो डाइपोल सिस्टम तो एक एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से देखें।
तो जब इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट का कोई डिस्टेंस हमें मेजर करना हो किसी पॉइंट का, तो सोचते हैं कहाँ से लिया जाए, यहाँ से या यहाँ से, कंफ्यूजन रहता है। तो हमेशा कहाँ से लिया जाता है, सेंटर से। तो सेंटर से लिया जाता है। तो सपोज ये डाइपोल है, इसके एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम ए मान लिए, अलोंग इट्स एक्सिस। तो यहाँ पर जब हमने मान लिया इसको, जो कि यहाँ से कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, कि वो भी किसके लिए, इफ एक्स या इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल के लेंथ से बहुत ज्यादा हो, तो ये जो एक्सिस के ऊपर फील्ड आता है डेरिवेशन से, है ना, तो ये आता है 2k इंटू 2p अपॉन आर क्यू, k इंटू 2p अपॉन आर क्यू। और इसी का यदि हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म यही होता है कि डाइपोल की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे हमने ये बताया ना आपको k2p, तो जो इसका डायरेक्शन वो इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि डाइपोल तो इतना ही है, समझो जरा, यहाँ पे डाइपोल ये है p, तो डाइपोल जैसे लेफ्ट से राइट दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू, यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू। तो इस डाइपोल के अलोंग ये पॉइंट हो गए, है ना, डाइपोल के अलोंग ये हो गया। तो चाहे हम इधर स्टडी करें चाहे इधर स्टडी करें, मतलब ऐसा मत सोचना कि ये इधर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इधर कैलकुलेट करेंगे तो इधर होगा। तो एक्चुअल में यदि ये डाइपोल है तो तुम चाहे लेफ्ट साइड स्टडी करो चाहे राइट साइड स्टडी करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने पी के अलोंग बताया। अब कैसे, अभी तो कैलकुलेशन है, अभी तुमको ऐसे याद रखना है। तो ये ई एक्सिस हमेशा कहां पर होगा, डाइपोल के डायरेक्शन के अलोंग। मतलब ऐसे मत सोच लेना कि इस तरफ वाला इधर होगा इस तरफ वाला इधर। यदि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेफ्ट साइड कैलकुलेट करो या राइट साइड, सेम डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो कि जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, 1/r³। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है। मींस यदि हम सेपरेशन को डबल करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r² से, लेकिन डाइपोल की वजह से यदि हम सेपरेशन क्या कर दें, डबल कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 1/8 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आते हैं हम पोटेंशियल के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल लिखो एक्सिस पर। तो जो बी एक्सिस है वो है kp/r², और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको तुम ऐसे ही लिखोगे। अब हम इसी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, इस तरफ निकालोगे तो वो नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज है, तो इस दोनों साइड अलग अलग होगा। मतलब एक्सिस फॉर्मूला हमें ये लेना है कि बी एक्सिस प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन यदि हम इसमें पोटेंशियल की बात करें, जैसे ये डाइपोल है, ये डाइपोल P हो गया, एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो ठीक है कि P/r² होगा, लेकिन यहां पर पोटेंशियल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। यहां सेम डायरेक्शन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, और यहां पे कैसा आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। ठीक है ना, इस तरफ देखोगे तो पॉजिटिव, इधर कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर चार्ज जो डाइपोल बना है एक्चुअल में यहाँ -q है, यहाँ पर क्या है, +q है। तो जब ये -q और +q है तो माइनस का सेपरेशन कम होगा, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा, प्लस का सेपरेशन ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम आएगा, तो नेट नेगेटिव बचेगा। लेकिन जब आप इस तरफ कैलकुलेट करोगे तो प्लस का सेपरेशन कम होगा, तो kq/r है ना, यदि पॉइंट चार्ज से लेते हैं तो kq/r लिखोगे, तो ये सेपरेशन कम है, तो इसका पॉजिटिव के पोटेंशियल ज्यादा आएगा और नेगेटिव का कम आ जाएगा, तो नेट क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो ये पोटेंशियल। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकाला वो इसके बीच में नहीं निकाल रहे हैं। बीच में क्यों नहीं निकाल रहे हैं, डाइपोल के बीच का कोई थोड़ी मतलब, डाइपोल तो -q और +q से मिलके ही बनता है, तो वो
Q और प्लस Q कंबाइंड सिस्टम डाइपोल कहलाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², जबकि डाइपोल से कितना है, प्रोपोर्शनल टू 1/r3। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, और डाइपोल से क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है ना। ये तो हमने इसका एक्सिस पर फाइंड आउट किया। अब आते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम इस नेक्स्ट केस में देखते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज ये डाइपोल है P, तो इस डाइपोल का मतलब है ना भाई यहाँ माइनस है या प्लस, तभी तो डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। तो इससे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ले रहे हैं R, लेकिन कंडीशन वही है क्या, कि जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डाइपोल। जो भी आप लेंथ ऑफ डाइपोल लो, A लो, X लो, 2L लो, 5L लो, जो भी हो, वो लेंथ ऑफ डाइपोल से बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो यहां पर हम कैलकुलेट करें, देखो जब ये R है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग देख रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही लिख लो। देखो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट करें तो B पर ऐसे सिंबल लगाने का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, के क्यू बाई जो भी दूरी हो, मान लो के क्यू बाई बाई हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ये के माइनस क्यू बाई बाई, ये के प्लस क्यू बाई बाई, दोनों कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी 0, पोटेंशियल 0। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां पे होगा क्या, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इसको ब्रेक करें, जैसे ये ड्यू टू पॉजिटिव आया, ड्यू टू नेगेटिव आया, डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, सम इसका वेक्टर सम करना है, तो जब इसको आप रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर, इस वाले का एक कंपोनेंट इधर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट एक्स आएगा इनका, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इधर आया, तो ये आएगा ई परपेंडिकुलर। तो जब रिजल्टेंट आप देख रहे हैं, अभी भी दिख रहा है आपको कि ये एक फील्ड इधर है, एक फील्ड इधर है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पर होगा, तो इसी तरफ तो आएगा। तो जब इस तरफ आया तो देखो डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया, उसके अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएगा वो मैग्नीट्यूड वाइज तो हो गया के पी बाई आर क्यू, लेकिन यही वेक्टर वाइज देखोगे आप, वेक्टर वाइज देखोगे परपेंडिकुलर पर, तो के जो डाइपोल की डायरेक्शन है उसका अपोजिट है, तो क्या लिखोगे, के माइनस पी और अपॉन आर क्यू। वहां पर याद करो, वहां पर क्या था, के 2p बाई आर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही आ रही थी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, तो इसलिए उसको आप यहां लिखोगे, तो के माइनस पी बाई आर क्यू, साथ में ई परपेंडिकुलर, यहां पर भी प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, 1/r3। अब ध्यान से देखें आप, इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डाइपोल, तो लेंथ ऑफ डाइपोल से बहुत बड़ा है, तो उस केस में देखो ई एक्सिस बाई ई परपेंडिकुलर, इसमें क्या था, इसमें था के 2p बाई आर क्यूब, जबकि यहां पे क्या आ रहा है, के पी बाई आर क्यूब, तो ये हमेशा कितना होगा, 2 होगा। तो जब r का वैल्यू, डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द डाइपोल, then axis ratio of electric field on the axis and perpendicular bisector will be 2, okay, will be 2. Now
नाउ सी केस थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ये जो दो केस लिया अभी हमने along द एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये तो एक स्पेशल केस हो गए। लेकिन इसको यदि हमें जनरल केस में लिखना हो तो जनरल केस में क्या होगा, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल P and we want to calculate electric field on this position. Again condition will be same, are very greater than length of dipole and electric dipole moment is vector quantity. A vector can be resolved any number of vectors, but यहाँ पे हम सिर्फ दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। किसी वेक्टर को हम लोग इनफाइनाइट वेक्टर में तोड़ सकते हैं, पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे तो दो आएगा। तो यहाँ पर सपोज एक ऐसा पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग क्या करें, हम इसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं। पी को आप ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट पी का इधर आएगा, ये इस तरह से ये आया है ना। तो एक कंपोनेंट इस तरह से आएगा और इसका वैल्यू जो हो जाएगा, जो कंपोनेंट इधर आएगा ना, ये वैल्यू हो जाएगा P cos थीटा, और दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर आएगा, P को रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा P sin थीटा। अब हमने इसका मतलब है इसको तो खत्म कर दिया, तभी तो टूटा हुआ P cos थीटा P sin थीटा। तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये जो P sin थीटा के लिए है ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बताया भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट। तो ये तो हो गया E परपेंडिकुलर। लेकिन इस डाइपोल के लिए, क्योंकि इस P को हमने तोड़ दिया इस डाइपोल में और इस डाइपोल में, है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो तोड़ सकते हैं। तो जो ये आएगा उसका फील्ड कहाँ होता है, एलोंग होता था, सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा E एक्सिस। तो रिजल्टेंट क्या होगा डाइपोल का, रिजल्टेंट होगा इस तरह से, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा। तो पहले तो हम E परपेंडिकुलर को डिफाइन करें। तो E परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इस वाले डाइपोल के लिए काम कर रहा है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था KP/R3, पर P का वैल्यू यहाँ पे कितना है, P sin थीटा। इसी तरह से E एक्सिस का निकालो जरा, ये था फॉर्मूला K2P, पर P नहीं है, एक्सिस के लिए P का वैल्यू है P cos थीटा अपॉन R3। तो नेट E कितना होगा, दोनों 90 डिग्री पर हुआ, तो क्या हो जाएगा E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस E एक्सिस स्क्वायर। ये वैल्यू रखो आप, तो दोनों से KP/R3 तो बाहर, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा। इन दिस 4 cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा merge with sin square theta. So E will be KP/R3 and sin square theta plus cos square theta become 1 and 1 plus 3 sin square theta. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल हो गया। इससे हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, एक्सिस, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। एक्सिस के लिए चाहिए तो थीटा विल बी 0, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की चाहिए तो थीटा विल बी 90। वैल्यू रखोगे रिजल्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। नाउ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर अगेन ड्यू टू बोथ, और ये कैसा क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है स्केलर, तो स्केलर सम करोगे तो B एक्सिस, एक्सिस के लिए आया था KP, पर P नहीं है, एक्सिस के लिए P का वैल्यू कितना है, P cos थीटा बाई R स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके लिए काम कर रहा है, और परपेंडिकुलर पर पोटेंशियल कितना आया था 0। तो इस तरह से पोटेंशियल का जो वैल्यू आ गया
वो है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये भी जनरल फॉर्मूला हो गया, इससे हम किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, साथ में यदि आपको ये रिजल्टेंट निकालना हो तो आप यहां देखें कि ये एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा बना रहा है। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखें। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं टेन अल्फा यानी डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E means tan theta equal to perpendicular. Perpendicular is E perpendicular by base. Base is E axis. Perpendicular is K. Perpendicular means this one. इसमें इसका काम था, तो K P sin theta by R cube and इधर K 2P cos theta by R cube. ये कैंसिल हो गया। Then tan alpha equal to kp by r cube cancel, then sin theta by cos theta, tan theta by 2. So alpha will be tan inverse tan theta by 2 and डायरेक्शन यहां से ना लेके हम डाइपोल से ही देखें, तो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड with the dipole इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। देखो ये थीटा है ना, हॉरिजॉन्टल से देखें तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो इस हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन में कितना बन जाएगा, ये थीटा ये और अल्फा ये, थीटा प्लस अल्फा एंड अल्फा इज दिस। ओके, अब हम लोग आते हैं तो अब हम टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E and dipole placed like this and dipole is P, it makes theta angle with the electric field direction, so we can say this is E, and torque acting on this, E is the vector quantity, it makes theta angle with the dipole, and angle between two vectors always measure from tail to tail, okay, and its value lie is between 0 to pi, so torque will be P cross E, okay, vector product P cross E, and work done by electric field, or we can say electric force, field होगा तभी force act करेगा, work done by electric field to rotating dipole. Suppose this is electric field and we want to rotate the dipole from this position to this position, and this is horizontal direction, and this angle is theta 1 and this angle is theta 2. So work done equal to torque d theta. Torque d theta and torque in magnitude form can be written as Pe sin theta. Cross product is क्या होता है, Pe sin theta. So torque d theta, if integrate this Pe sin theta limit theta 1 to theta 2, integration of sin theta is minus cos theta, substitute limit, then work done will be Pe minus cos theta 2 plus cos theta 1, so it will become cos theta 1 minus cos theta 2. This is the work done. And next, potential energy.
of electric dipole in uniform electric field or in field, the potential energy of electric dipole in electric field U equal to minus P dot E. Again, suppose this is electric field and this is dipole, this is electric field, it makes theta angle, then potential energy become minus P dot E or minus P cos theta. Theta is the angle between dipole moment and electric field. Okay, now Umax इक्वल टू प्लस बी, ये कब होगा? व्हेन cos थीटा इक्वल टू -1. ओके, cos थीटा साइन और कोसाइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1. अब हमको मैक्सिमम चाहिए तो इसका वैल्यू ये क्या कहां से कहां लाई करेगा? हम ये कह सकते हैं u लाइज बिटवीन -pe टू +pe. तो हमें दिख रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू वो तो p ही हो सकता है, क्योंकि cos का वैल्यू या साइन -1 टू +1 होता है, तो इसी के बीच लाई करेगा. तो ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा. तो cos थीटा इक्वल टू -1, इसका मतलब थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री. तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखो, डाइपोल को हमें ऐसे रखना पड़ेगा. 180 डिग्री मीन्स ये डाइपोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, फोर्स तो जीरो होगा पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो ये इक्विलिब्रियम जो बनेगा, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, जितना प्लस पे लगेगा उतना माइनस पे अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. कैसा होगा? अनस्टेबल. और जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? -p. ये कब होगा? जब cos थीटा का वैल्यू प्लस का 1 लिखो. प्लस का 1 का मतलब थीटा 0 हो. अब थीटा 0 होगा तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल हमें ऐसे रखना पड़ेगा. तो देखो, डाइपोल ऐसे हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हुआ, तो एंगल कितना है? 0. तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा? स्टेबल होगा. इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल. ओके, अब हम लोग एक इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं. क्वेश्चन इज दिस: सपोज दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अ रॉड कंसिस्ट ऑफ -q and +q charge and mass m each with light rod. तो एक, अब रॉड के दोनों एंड्स पर अटैच्ड है, तो फिक्स हो गया इनके मासेस m और m है. लाइट रॉड है और इनके मासेस क्या है? m और m है. तो जब इसके साथ अटैच्ड है तो ये चार्ज जा नहीं सकते, अदरवाइज -q +q क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा तो पास आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है. इफ लाइट रॉड मीन्स इट्स मास इज नेग्लिजिबल. इफ रॉड स्लाइटली रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर एंड then release so that its motion is SHM. Also find its time period of oscillation. तो अब इसमें आप देखिए कि ये जो हमने क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब इसी को थोड़ा सा हमने बाकी चीज यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब इसको हम दोबारा से बना रहे हैं फिगर में, है ना. क्वेश्चन ये हो गया. तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखें. तो सॉल्यूशन ये हुआ
ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल जो इधर था, इधर हमने बताया आपको माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इसका मतलब डाइपोल की डायरेक्शन ये हो गई। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डाइपोल एक्चुअल में हुआ वो ऐसे हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया तो ये ऐसे आ गया थीटा, और हमने बोला किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, तो आप सेंटर ले लो। मतलब ये रोटेट करेगा तो किसके अबाउट रोटेट करेगा, सेंटर के अबाउट। और कितने एंगल से घुमा दिया हमने इसको, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से रोटेट करा दिया। तो अब ये बताएं कि जब इसको हम रोटेट करा दिए तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा। और देखिए टॉर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो P क्रॉस E से हम इसको रोटेट कराए राइट क्लॉकवाइज, सॉरी इसको रोटेट कराए एंटी क्लॉकवाइज, जबकि टॉर्क P क्रॉस E से कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। तभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे हम कि स्टेबल में तो ये रिस्टोर करेगा अपने आप को। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। अब फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा। ठीक है ना। यदि मैं ये कहूं कि लेट रॉड रोटेटेड बाय थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, रिस्टोरिंग वर्ड जब भी लिखते हैं हमने बताया था माइनस, तो PE साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल रोटेशन, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इक्वल टू थीटा। सो टॉर्क इक्वल टू माइनस PE थीटा। नाउ टॉर्क इक्वल टू माइनस PE थीटा, टॉर्क इज I अल्फा एंड माइनस P मीन्स P तो गिवन नहीं था, तो हमने चार्ज बताया आपको माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो एक चार्ज क्या हुआ Q और सेपरेशन L, E इंटू थीटा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखें यहाँ पे ये सेंटर है, ये मास M, ये मास M, ये सेपरेशन L/2, ये सेपरेशन L/2, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अबाउट दिस पॉइंट, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज M L/2 स्क्वायर इसका, M L/2 स्क्वायर इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा 2M L/2 स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू माइनस QL/E थीटा। देन अल्फा इक्वल टू 4 होगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दो, माइनस QEL थीटा इक्वल टू ML स्क्वायर बाई 2, ऊपर चला गया तो 2QE अपॉन ML माइनस थीटा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, तो इसको बोलेंगे मोशन इज SHM। जैसे लीनियर SHM में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, ऐसे रोटेशनल में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो ये आ गया है, और ये जो वैल्यू होती है कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होगा 2QE अपॉन ML, तो ओमेगा आ जाएगा, और T क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे, तो नहीं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2Q अपॉन M ही आ गया। तो अब हम लोग इसको यहां पे लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखें, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2QE अपॉन, सॉरी हियर L ML, and time period 2 pi by omega, so it will be 2 pi root ml by 2QE. This is the time period of oscillation. Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा गॉस लॉ का होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके